माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, now yes, Parveen ji, I will call you because I already called Sharad ji. After that I will call you, but be patient, I will allow. You can associate. चेयरमैन सर, मैं एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। जो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं इस देश में, पूरे देश भर में उनके रंग और रूप को देख करके इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं मानता हूं कि सरकार चूंकि विदेश मंत्री बहुत चिंता के साथ उस सवाल को उठाती है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर के दुनिया के किसी मुल्क में हमारे लोगों के साथ जाती होती है रंग और रूप और भेद पर, तो हमको तकलीफ होती है। लेकिन ये सारे देश में इनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, सरकार को अकेले विदेश मंत्री पर नहीं छोड़ना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को और सरकार को बड़े पैमाने पर प्रयास करना चाहिए कि कैसे ये बाहर के जो लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारे बाहर के लोगों का इज्जत और मान और सम्मान, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, लेकिन हमारे देश में नोएडा में जिस तरह की हरकत होती है, 60 लोगों ने मारा उनको। और कल एक महिला, एक लड़की, उसको उतार करके मारा। यानी ये हालत जो है वो सरकार को मैं कहना चाहता हूँ युद्ध स्तर पर इस मामले को लेना चाहिए। और हमारा दुनिया में पूरी दुनिया में जिस तरह का मैसेज आ रहा, बहुत गलत हो रहा है। और भारत सरकार से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल नोएडा में एक बेटी को, लड़की को निकाल करके, जो अफ्रीकन लड़की थी, उसको लोगों ने 2-3 लोगों ने, I agree with you. बहुत Sharad is very important. Yes. सदन को इसकी भर्ती करना चाहिए, सदन को इसकी भर्ती करना चाहिए। No, Anand Sharma, I'll call you. Anand Sharma. Sir, in this country, soon after our independence, the first Prime Minister Jawaharlal Nehru had taken a major initiative on Africa to support the liberation movements, freedom struggles. In addition to that, we brought African students in thousands on Indian scholarship, even though we were a poor country. Sir, this House must know that under the ITEC scheme, which we started in 1963, 10,000 scholarships are given primarily to students from Africa to study in Indian colleges, in Indian universities every year. In addition to that, we have another 1,200 scholarships which are given through the ICCR. This country commanded goodwill and respect. Right. Now, throughout the world, India's name has been sullied because of the I attacks agree. Yes, on correct. the African students. Okay, They're it beating will- up. This is racial. Only associate. This House must condemn You it. associate, okay. And the government must set up a cell, sir. Chair also- Set up a special cell Yes. in the Foreign Ministry and in the Home Ministry Yeah. to coordinate Yeah, and to ensure HOD only safety associate. and protection. I'd like to, all the Okay, sir. associate and, You made the point. and I'd like to not only associate myself, but also draw the attention that there should be a special resolution that the House should move, and we should adopt it. Yes, we can consider And, that and, along with and the the government government. should consider this. Sir, the normal excuse given is that there is apprehension of peddling of drugs and other narcotics and something else about them. No, these That is for the are police law and order problems. These are law and order problems. The law and order machinery must take care of that. This is not the way to do it, sir. Yeah, fully. If there is cow protection law in some state, the law and order must do it, not cow vigilantes. No, that is another issue. Don't bring cow into Any this. eve teasing going on? No, sir, please. Don't bring cow into this. If there's any eve teasing going on, they cannot be private armies saying that Yeah, Romeo yeah, squads. that is The correct. law and order machinery must take I agree. care. Yeah. Private Yeah, squads are not Bajwaji, you allowed. associate. Bajwaji to associate. We should strongly condemn this. Yeah, I am and informed. tomorrow Yeah. morning it should come from the House and maybe from the yeah. chair will be an appropriate person. Bajwaji, associate So karo. that it takes care You of can the only entire associate, House. Bajwa. Yes, sir, I associate with what Okay. our honorable members have said. Another thing, sir, sir, just a second. I want to tell the government, in the last 2 years, the government has made a special attempt कि अपना footprints अफ्रीका पर छोड़े। 16 दफा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया अफ्रीकन देशों को।
ये सारी बातों से सारी गुडविल खत्म हो जाती है। लाखों करोड़ों रुपए हमने सॉफ्ट लोन्स दिए। Okay. और आई वांट All right. Okay. गवर्नमेंट मस्ट डू Acha, समथिंग। all right. हाँ जी, on See, I would like to comment on this because, no, we are condemning the racial attack on Indians in other countries. In America, Australia, and at the same time, racial attack in our country cannot be justified. Government should be very vigilant. Very strong action should be taken. Very strong action should be taken. Yeah. Even a common man says this is not correct. Wrong. The feeling. Yeah, exactly. No Indian will justify it. No Indian. See. Yeah. Now, Miss, yes, Kumari Parveen. बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक ऐसे बात को यहाँ पे सदन पर रखना चाहती हूँ जो औरतों के मान और सम्मान और बच्चियों के मान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना चला रहे हैं, इसकी हम तारीफ करते हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन दूसरी तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए, बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, और मार्च के ही महीने में एक मंत्री ने जो राजस्थान के बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, और वो भी औरतों की मान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो बयान दिया एक बच्ची के साथ गलत होता है, और वो अपने पिता से जब बताती है तो उसे एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है, और इस एफआईआर दर्ज देर में जो होता है उस पे वहां के गृह मंत्री बयान देते हैं राजस्थान के कि आमतौर पर अगर 8 लोग बलात्कार करते हैं और पीड़ित बच्ची उसी दिन अपने माता पिता को सूचित नहीं करती है तो ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। No, listen to this. माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी महिला हैं, और उनके गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं तो वो कितना महिलाओं का मान और सम्मान करते, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के मान और सम्मान का बहुत ध्यान देते हैं। अगर वो महिलाओं के मान और सम्मान का ध्यान देते हैं तो इस मंत्री को फौरन पद से हटाना चाहिए, तभी महिलाओं के मान और सम्मान रहेगी। मैं इस मंत्री को बर्खास्त करें, यही मेरी, चूंकि भाजपा की सरकार है, मैं यही चाहती हूँ। बस इनसे जवाब भी मैं चाहती हूँ। You can associate, all associate. शैलजा जी एसोसिएट करते हुए, विप्लव ठाकुर एसोसिएट करते हुए, रजनी पटेल एसोसिएट करते हैं। All the names who associate may be added. All the names. नकवी जी, सर इस तरह के किसी भी, अरे नकवी जी आप सुनिए, let the minister react. Budhania ji, you are not minister, sit down. Let the minister react. Let the minister react. सर इस तरह के किसी भी बयान को किसी भी रूप में न्यायोचित ठहराया नहीं जा सकता। अब सुनिए। इस तरह के किसी भी बयान को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि वो निंदनीय है। अगर ये अखबार में जो छपा है वो सच है तो इसलिए जो है इस पे महिला आयोग ने नोटिस दिया है। साथ ही साथ जो है वो हम राज्य सरकार को इस संबंध में जो सदन की भावना है उससे अवगत कराएंगे ताकि वो उचित और कदम उठाए। इसके बारे में क्या हो रहा है हमको भी इन्फॉर्म करो। हमको भी इन्फॉर्म करो, हाउस में भी इन्फॉर्म करो ना। श्री नरेश अग्रवाल, माननीय अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेशियल इशू करके इसको उठाया गया क्योंकि सुषमा जी यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि उसके बारे में फैक्चुअल स्थिति उसके बारे में जानकारी रेशियल इशू का। ओके नरेश जी, आई विल गिव यू, दिस इज इम्पोर्टेंट, लेट अस। Yes, that is also the first question, sir. She can answer it then. The first question is नहीं यूएस का नहीं, आंसर तो 1 बजे आएगा। यूएस का नहीं, ये कर ये ग्रेटर नोएडा का सवाल उठाया ना, यूएस का नहीं उठाया। अच्छा बोलिए। नो लेट अस हियर, प्लीज। माननीय उपसभापति जी, भाई शरद यादव जी ने जो सवाल उठाया मैं टीवी पर देख रही थी, इसीलिए मैं पहले आई कि मैं कम से कम मैं भी उसका सपोर्ट किया। वेरी गुड। माननीय उपसभापति जी, ये दोनों घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिसका उल्लेख शरद जी ने किया। पहले तो एक स्थानीय 19 वर्ष का किशोर, उसकी मृत्यु हुई, और उसके बाद
नाइजीरियाई छात्रों के साथ बेहद मारपीट हुई। जैसे ही इस घटना की जानकारी मुझे मिली, तैसे ही मैंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और मैंने स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से बात की और मैंने ये कहा कि आप निष्पक्ष जांच का आश्वासन सबसे पहले दीजिए लोगों को, और मैं स्वयं भी इस बारे में बात करूंगी। मेरे सहयोगी मंत्री MJ अकबर जी ने बात की, मेरे सहयोगी मंत्री जनरल VK सिंह जी ने बात की, मैंने स्वयं ने बात की और योगी आदित्यनाथ जी ने फोन करके ये कहा कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब तक जांच का परिणाम नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में कुछ और हमको कहना उचित नहीं होगा। वो जांच का परिणाम आ जाए, वहाँ का प्रशासन दोनों चीजें कर रहा है। वहाँ का प्रशासन ये भी कर रहा है कि पूरी सुख और शांति रहे। जिन नाइजीरियाई बच्चों को मार लगी है उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच इसकी नहीं हो जाती, जैसे कि मैंने कहा है, स्वयं मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है और मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से पूरे सदन को आश्वस्त करती हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद जो कार्रवाई जिसके खिलाफ करनी होगी हम करेंगे। Thank you. Now Naresh Agarwal. No, don't extend it. Yechuri ji over. Naresh Agarwal. Yechuri ji, don't extend. Sri Naresh Agarwal. That he has given. You are not given. Your notice is there. Do you want your 0 hour? Then you keep quiet there. कि वहाँ का प्रशासन I am fighting for the 0 hour people. और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम बहुत सजग हैं। Okay, Yechuri ji, Naresh ji. माननीय सभापति जी, I must thank the minister for the prompt response, immediate response. Naresh ji, बोलिए. One more. No, Yechuri ji, no. इन लीडर्स के लिए अलग से टाइम रख दीजिए। Yechuri ji, no. Naresh ji, इन लोगों के लिए कुछ अलग से टाइम रख दीजिए। बोलो. अलग से टाइम रख दीजिए कुछ। माननीय सभापति जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, भी कुछ दिन पहले इन्होंने सदन में हेल्थ पॉलिसी की बात करी। ठीक, हम सब लोग चाहते हैं हेल्थ पॉलिसी हो कंट्री के लिए, लेकिन अभी भी देश की 50% आबादी कोएक्स नीम हकीम पर डिपेंड कर रही है और सबसे ज्यादा मुश्किल है इस देश में 3 चीजों की, नकली दवाइयों की, सब स्टैंडर्ड दवाइयों की और एक्सपायरी दवा की। श्रीमान, वैसे भी दवा इतनी महंगी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पास चले जाओ, इतनी जांच बता दें क्योंकि हर जांच में कमीशन उनका तय है। आम आदमी कैसे इलाज कराएगा, इसका भी कोई स्वास्थ्य नीति में नहीं कहा है। भारत सरकार ने करीब 37,000 नमूनों पे जांच कराई, उसमें करीब 4,000 नमूने फेल हुए, जिसमें 500 नमूनों पे नकली दवा पाई गई। अब बताइए कितना बड़ा कोएक्स वगैरह गांव में बिकने वाली दवा 90% एक्सपायरी डेट की दवा बिक रही है। किसी को पता नहीं कि दवा हम जो खा रहे हैं एक्सपायर हो चुकी, गांव का गरीब जानता नहीं है। जेनेरिक और नॉन जेनेरिक 2 नाम से दवाइयां बिक रही हैं। श्रीमन, जेनेरिक दवाई का दाम तो सरकार ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन नॉन जेनेरिक दवा बड़ी बड़ी अमेरिकन स्टैंडर्ड कंपनियां, आज विश्व सबसे बड़ा देश है जहां दवाइयों की सबसे बड़ी खपत है, सबसे बड़ा विश्व का मार्केट WTO ओपन कर दिया। सारी कंपनी आके जिस तरीके पे हिंदुस्तान में गरीब जनता को लूट रही है, आज हर डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता, विदेश में चले जाओ एंटीबायोटिक लिखेंगे भी नहीं, शायद लास्ट में एंटीबायोटिक लिखे, यहाँ छींक भी आ जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देगा। कोई एंटीबायोटिक की अच्छी गोली 70 रुपए से नीचे नहीं है। 5 दिन की लिख देंगे, 7 दिन की लिख देंगे, क्या उससे नुकसान होगा हमको किसी को मालूम नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी चुपचाप बैठे रहते हैं, हम न समझ ही नहीं पाए, ये अभी प्रदेश से देश में उभर ही नहीं पाए कि हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नहीं रह गए, अब देश के स्वास्थ्य मंत्री हो गए। हमने तो कई बार इनसे कहा कि बोल्ड स्टेप लीजिए, लेकिन ये बोल्ड स्टेप लेते नहीं। इनके पास कोई जांच एजेंसी नहीं, जांच करने का तरीका नहीं, सारा मिला भगत खेल है। He is a bold minister. He is a very bold minister. He is in house only, out of house not. Out of it is a very gentleman. श्रीमान, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या मैंने उठाई है। ये सिर्फ हम लोग के साथ नहीं, हमसे साथ नहीं हो सकता, लेकिन आम जनता के साथ जिस तरह देश में हो रहा है, बहुत गंभीर मामला है। गांव में जिस तरीके से दवाई की दुकानों पे लूट हो रही है, फार्मासिस्ट हमारे पास है नहीं, दवाई के दुकान के लाइसेंस बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं।
इस पे कोई सरकार एक नीति बनाए, और मैं चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी इसका जवाब दीजिए, कोई नीति बने और नकली सब स्टैंडर्ड और दूसरी तरीके की दवाएं एक्सपायरी पर रोक लगे। ओके, श्री अहमद पटेल, श्री अहमद पटेल, श्री अहमद, ओके, शॉर्ट रिप्लाई, माननीय सदस्य, शॉर्ट रिप्लाई, ब्रीफ। माननीय सदस्य श्री नरेश अग्रवाल जी ने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। भारत सरकार इसके बारे में बहुत संवेदनशील है और प्रोएक्टिव है। एक बात मैं बता दूं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वह स्टेट्स के पास है। स्टेट्स ही इसकी क्वालिटी को और इसके चेकिंग को, इसका सारा अधिकार स्टेट के पास है। वी आर गिविंग देम फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए एक मोर देन 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट हैज बीन गिवन फॉर increasing and enhancing the laboratory facilities in the states, training part, the recruitment part, the HR part, all parts are being, all components are being taken care by Government of India, and we are proactive on it. I would like that the state should also respond accordingly. Okay. States के अलग-अलग पैमाने हैं। कई states बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ये स्पूरियस दवाइयाँ नहीं हैं। कई states ऐसे हैं जो बिल्कुल respond नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर यह चीजें ज्यादा मात्रा में चल रही हैं। इसलिए थैंक यू श्री अहमद पटेल। मैंने जो 0 आवर्स में जो नोटिस दिया इश्यू उठाऊं उससे पहले जो महिलाओं ने जो इश्यू उठाया और साथ साथ नाइजीरियन छात्रों पे जो हमला हुआ है, वो दोनों इश्यू को मैं सपोर्ट करता हूं। सुषमा जी ने आश्वासन भी दिया है हाउस को, इसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी। मैं एक बेसिक क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। कोई इंपॉर्टेंट इश्यू हो, बिल्कुल हाउस में उसको उठाना चाहिए विदाउट नोटिस, बिना नोटिस। लेकिन 0 आवर्स में जो नोटिस दी गई है, सपोज किसी का नंबर उसमें नहीं आता है तो उसको दूसरे दिन प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और वो भी बिना नोटिस प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मेंबर हर रोज सुबह में आता है, अपनी नोटिस देता है, उसका नंबर नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से मेरा सुझाव प्रायोरिटी देते हैं, रिपीट करेगा तो मिलनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। नो, सुनिए, रिपीट करेगा तो, नोटिस रिपीट करेगा तो प्रायोरिटी मिलते है, प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, ऐसा दैट इज द प्रोसीजर। एनीवे, रूल्स कमिटी शुड लुक इनटू दिस। ओके, नाउ आपके माध्यम से मैं केंद्र का ध्यान, जो हमारे फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसकी ओर सदन का ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। हर हफ्ते हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान की मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी या श्रीलंका की मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी हमारे फिशरमैन को उठा के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, उनकी नाव भी पकड़ के ले जाते हैं और महीनों तक, सालों तक उनको छोड़े नहीं जाते। आज पाकिस्तान की और श्रीलंका की जेल में मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा नाव बंद है, 300 से ज्यादा हमारे मछुआरे बंद हैं। अभी कुछ दिन पहले मांगरोल, पोरबंदर, ओखा और कुछ का जखाओ कुछ मछुआरों को पकड़ के ले गए। श्रीलंका की सिक्योरिटी एजेंसी भी हमारे जो तमिलनाडु के 18 मछुआरों को लेके चली गई। लेकिन उसके बारे में मेरे ख्याल से सरकार को सोच के जो मछुआरे जो है उनको छुड़ाने का या उनके नाव छुड़ाने का बंदोबस्त करना चाहिए। आखिर तो हम सब जानते हैं कि किसान के लिए हल का जितना महत्व है और जवान के लिए अपनी बंदूक का जितना महत्व है, उसी तरह जो मछुआरे हैं हमारे, उसके लिए नाव का इतना ही महत्व है। उनका आजीविका का साधन है, और ये नाव जब छोड़ते हैं तो उसको डैमेज करके छोड़ देते हैं या उसमें छेद कर देते हैं, तो उनका आजीविका जो साधन है वही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी मछुआरे बंद है जेल में, जल्द से जल्द उसके बारे में कार्रवाई की जाए, उसको छुड़ाने के लिए। और जो उनकी नाव है, क्योंकि नाव जब आएगी वो तो डैमेज होगी, उसमें छेद होगा, वो तो काम में नहीं आएगी। तो सरकार को जो जैसे पहले एक पैकेज बना हुआ था, उसी तरह सरकार को कुछ पैकेज बनाना चाहिए ताकि उनको कुछ लोन मिल सके, कुछ सब्सिडी मिल सके, ताकि ओके, टाइम ओवर। श्री मधुसूदन, टाइम ओवर।
आया है। एक मिनट, उपसभापति जी, जो विषय अभी अहमद पटेल जी ने उठाया है वो विषय श्रीलंका के बारे में यहाँ कनिमोई जी ने उठाया था और पाकिस्तान के बारे में मधुसूदन मिस्त्री जी ने उठाया था। उस पर एक लिखित वक्तव्य दोनों के बारे में मैंने यहाँ दिया था, उसकी क्लैरिफिकेशंस ड्यू हैं। आपने कहा था कि क्लैरिफिकेशन हो नहीं सकती क्योंकि स्लो मोटो स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं क्लैरिफिकेशंस देने को तैयार हूं, आप समय तय कर दीजिए। आप जब समय तय करना चाहें कर दीजिए, मैं आकर के उस पर क्लैरिफिकेशंस दे दूंगी। और जो विषय अहमद जी ने उठाया उस पर जो पर सरकार की तरफ से बयान दे दिया गया है इसी सदन में दोनों के बारे में। Okay, that's correct. We will fix time for clarification. Shri Madhusudan Mistry. सर, मैं आपकी और गुजरात में किसानों की आत्महत्या जो हुई है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल को पूरे देश के अंदर और दुनिया में बहुत ही अच्छी तरह इस सरकार ने बेचा है, लेकिन हाल ही के अंदर जो फिगर सरकार ने खुद ने दिए गुजरात के बारे के अंदर वो बड़ी शॉकिंग है। सर, गुजरात में गए 5 साल के अंदर 2012 से लेकर 2016 तक ऑफिशियली, ये सरकार की फिगर है, मेरी खुद की नहीं है, 91 किसान जो है उन्होंने है तो आत्महत्या की है। और ये आत्महत्या क्रॉप फेलियर की वजह से और डेथ की वजह से हुई है। सर, 2012 में जब आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे उस वक्त पे उन साल में 2012 में 36 किसान है तो उन्होंने आत्महत्या की, 2013 में है तो 33 किसान ने आत्महत्या की, 2014 में 8 और 2015 में 8 और अभी तक 6 लोगों ने अभी तक आत्महत्या की है। सर, प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में तो उन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया था कि गुजरात के अंदर कभी किसान ने आत्महत्या की कर्जे की वजह से और जो है वो अपने क्रॉप फेलियर की वजह से। गुजरात के अंदर लाखों करोड़ों रुपयों का जो है इन्वेस्टमेंट आया, उसकी वाइब्रेंट समिट 2003 से लेके 2014 तक कांस्टेंट चली और है तो उसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में आने वाला है, वैसा कहा। सर, गुजरात में गुजरात सरकार की फिगर में दे रहा हूँ, गुजरात सरकार की फिगर के अंदर और ये आत्महत्या के जो कारण है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर कारण है। जिनके बच्चों का जो किसान लोग ने आत्महत्या की उनमें कितने लोग कपास वगैरह नहीं बेच सके उसका भी समावेश में होता है। सर, 21,56,000 21 लाख ऑफिशियल फिगर सरकार ने दिए, गुजरात सरकार ने, वो मैं you address the chair. You address the chair. Don't look there. 56,000 You address the chair. लोग रजिस्टर है अनएम्प्लॉयड सर। You address the chair. उसमें से 5 साल के अंदर सिर्फ 2,000 That will not going on record. 5 साल में 2,000 लोगों। Minister, don't do this. Minister should not interrupt. 2,000 लोगों। Minister should not interrupt. सर, 5 साल। Don't interrupt. You can say it in the end. Sit down. सबसे बड़ी शर्मनाक only what Mistry says will go on record. जिस किसान ने आत्महत्या की है अरे, you address the chair. Address the chair. Mistry, you address the chair only. नहीं है, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया, कोई स्कीम के मुताबिक नहीं। Mr. Mandavia, don't do that. असेंबली में कही दी हुई फिगर। Mr. Mandavia, don't do that. असेंबली में एग्रीकल्चर Minister should not do that. मैं कौन कर रहा हूँ, मेरी खुद की नहीं है। असेंबली Mister, don't do. Ministers never interrupt like this. No. You will. No, please. Look here and say. Okay, time over. Time over. Time over. Okay. Now, Sri Narayanlal Panjaria. Okay, see, ministers. No, see. Sit down. Ministers will always get a chance to reply. Then why should the minister stand up and interrupt? If you want to give the reply, I would allow you. No, please. Now, Panjaria. श्रीमान, आज हमारे राजस्थान प्रदेश का स्थापना दिवस। नरेलाल पंजारिया। आज से 61 वर्ष पूर्व राजस्थान प्रदेश की स्थापना हुई थी। सर, हमारे यहाँ पर 19 रियायतें 3 ठिकानों को मिलाकर और प्रदेश जो बना 7 चरणों में पूर्ण हुआ, 9 वर्ष उसके अंदर लगे। श्रीमान, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 70 वर्ष से लगातार हमारे राजस्थान में कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन एक जो पीड़ा है, राजस्थान सहित देश विदेश में रहने वाले 10 करोड़ से अधिक हमारे राजस्थान वासियों के मन की पीड़ा बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान, हमारे देश में एक ऐसी समृद्ध भाषा है जिसके पास बहुत बड़ा शब्दकोश है, लिपि भी है और साहित्य का भंडार है,
चाहे वो साहित्य वीर रस से संबंधित हो, चाहे वो भक्ति साहित्य हो। इस प्रकार का साहित्य जो है हमारे यहाँ पर बहुत है, गद्य पद्य दोनों में है। 10 करोड़ से अधिक राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोग जो है हमारे इस देश के अंदर राजस्थान सहित रहते हैं। हमारी मातृभाषा राजस्थान को संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक नहीं जोड़ा गया है। श्रीमान, इस पीड़ा की व्याख्या मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। सर, यह तकलीफ जो है, ये पीड़ा केवल मेरे अकेले की नहीं है, सभी प्रांतों में रहने वाले हमारे राजस्थान उस भाइयों की भी है। श्रीमान जी, वास्तव में तकलीफ उस समय हुई, 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी, 22 भाषाएं आज हो गई। राजस्थान की मांग आज से नहीं, लगातार चली आ रही है, उसे मान्यता अभी तक नहीं दी गई। केवल यही भी नहीं, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सभी लोग अपने प्रदेश की भाषाओं के अंदर अध्ययन करें, बच्चे पढ़े, साहित्य का अध्ययन हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों मिले, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण उद्यम देना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा की कई पत्र पत्रिकाएं समिति है। मेरे हाथ में एक पत्रिका है, मानक पत्रिका है, पूरे देश भर में चलती है। और तो और इसकी गंभीरता तब हो गई कि अभी हाल ही में फरवरी में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर एक मुकदमा लगा, वकीलों ने मांग की, जज से मांग की कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, क्यों नहीं हमारी मातृभाषा में बोलने का और डिबेट करने का मौका दें। जज साहब ने अनुमति दी। राजस्थान रे न्यायिक इतिहास में राजस्थानी ने मिलियो मान ये करके हेडिंग छपा, पूरी डिबेट इसके अंदर छपी। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे देश के अंदर, यही नहीं विदेश में भी, अमेरिका और कनाडा में राणा नाम की एक संस्था है, वहां पर भी लगातार और इसकी मांग बैठ के विदेश में बैठ के भी कर रहे हैं। श्रीमान जी, राजस्थान time over. Okay, time over. It is question our time.